तो लास्ट क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। उसके पहले एक आपको ओवरव्यू के लिए एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो जब हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनेगी जिससे सेल मेम्ब्रेन को समझना आसान हो जाएगा। In this video, we will be discussing the structure of the cell membrane. When scientists looked at the selectively permeable cell membrane, they described its structure as a fluid mosaic. You might know that a mosaic is a picture made up of little tiles. Like a mosaic, the cell membrane is made up of different parts as well. The cell membrane has two layers of phospholipids, referred to as a lipid bilayer. The lipid bilayer isn't rigid. The phospholipids in it have the ability to move in a flexible, wave-like motion. Let's take a closer look at a few phospholipids. The round head portions are hydrophilic, which means they are attracted to water. Both the extracellular fluid, meaning fluid outside the cell, and the cytoplasm inside the cell are mostly made up of water. So the hydrophilic phospholipid heads of the outer layer will be oriented toward the extracellular fluid, and the heads of the inner layer will be oriented toward the cytoplasm. The phospholipid tails are hydrophobic, which means watery areas repel them, so they orient toward each other in a direction as far away from the watery content as possible. There are also scattered proteins embedded in the phospholipid layers, some with carbohydrates attached. So, in the fluid mosaic model, the cell membrane is made up of different parts, and these parts make up a flexible boundary around the cell. But how do the majority of substances get in or out of the cell? Some molecules seep through the little spaces in between the phospholipids, which make up the majority of the semi-permeable cell membrane. However, other molecules are too big to fit through the cell membrane this way. So, how do these larger molecules pass through the cell membrane? The molecules move through proteins embedded in the cell membrane, either from the extracellular area into the cell or from the intracellular area out of the cell. These substances will move through tunnels made up of these proteins. We'll explore how things move through the cell membrane in greater detail separately. तो यहाँ पर आपने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से काम करती है। उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया, जो हम बाद में आपको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट क्लास में भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था, गाइडेंस से हमने उसका मटेरियल लिया था। अब हम थोड़ा उसको और इजी वे में समझने के लिए फिर से उसका रिवीजन करेंगे एक तरह से। तो सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है और इसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पतली और लचीली जो है होती है और यह कोशिका को बाहर से घिरती है, सेल को बाहर से कवर करती है। और देखा जाए तो यह सेल के अंदरूनी वातावरण को बाहरी वातावरण से एक तरह से अलग करती है।
तो यह सेलुलर होमियोस्टेसिस को बनाए रखने और उसके अंदर और बाहर पदार्थों की आवाजाही को रेगुलेट करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर दो कलरफुल लाइन दिख रही होंगी, है ना? एक पूरा सेल को कवर करके रखा है इसने, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये लिपिड की बाइलेयर होती है ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। तो इसमें आपको बताया गया था इस तरीके से। तो ये उसका एक फॉस्फोलिपिड लेयर का एक मॉलिक्यूल लिया गया है, उसमें फॉस्फेट जुड़ा है और एक ग्लिसरॉल जुड़ा है, और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके साथ जुड़ जाता है। तो जो हेड होता है वह हेड होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक। तो ये हेड दोनों तरफ होता है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ यानी आउटर लेयर की तरफ भी, और अंदरूनी लेयर की, और बीच में होते हैं फैटी एसिड या लिपिड इनको कहते हैं। तो जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है यानी कि पानी को आकर्षित करता है, और हाइड्रोफोबिक जो है ये बीच वाला हिस्सा लिपिड का हिस्सा होता है, जो कि पानी को दूर करता है या फिर उससे विकर्षित करता है उसको। तो ये होता है। तो जो मेम्ब्रेन होती है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से एक लिपिड बाइलेयर है, यानी कि दो लेयर से बनी होती है, जो लगभग 5 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। यह बाइलेयर तरल और गतिशील होती है, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा था, यह मूवमेंट करती रहती है, ठीक। जो लचीलेपन और आसपास के मॉलिक्यूल के साथ कई तरह की अंतः क्रिया या इंटर रिएक्शंस की जो है अनुमति देती है। तो लिपिड बाइलेयर क्या होता है? तो बाइलेयर मतलब दो लेयर। तो बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड होते हैं जो अपने हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी को दूर भगाने वाले, और जो पूंछ इसका जो हिस्सा है, पूंछ वाला हिस्सा है, तो पूंछ अंदर की ओर, और उनके हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो पानी को आकर्षित करने वाले होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को दूर भगाने वाले, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को आकर्षित करने वाले। तो इसमें जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक, सॉरी, ये जो हेड है फॉस्फोलिपिड का, तो जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल उसमें जुड़ा है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो लिपिड है वो हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो हेड है वो दोनों तरफ बाहर की तरफ होता है। इसी के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो है बाइलेयर के भीतर बिखरे हुए होते हैं, जो कठोरता और तरलता को नियंत्रित करते हैं। इसके लिए एक आपको दूसरी पिक्चर से समझेंगे।
ये पिक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ इन हिस्सों में जो है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स फैले होते हैं अंदरूनी लेयर में। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, तो ये लिपिड बाइलेयर है, इनके हेड इस तरफ है फॉस्फोलिपिड के, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर जो है जब कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर अलग अलग जगह जुड़े हुए रहते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन जुड़ता है या प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो वह ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। जब कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड जुड़ेगा तो वह ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। इस तरीके से इसकी हम डिटेल में चर्चा लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो ये हो गया लिपिड। लिपिड उसका एक स्ट्रक्चर है। लिपिड जो है बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड होते हैं जो अपने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जो हेड के नीचे जो पूंछ है उसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें। और हाइड्रोफिलिक जो पानी को आकर्षित करते हैं फॉस्फेट लिपिड होते हैं। तो जो हेड होता है वो दोनों तरफ बाहर की तरफ होता है, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल बाइलेयर के अंदर भीतर बिखरे हुए होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन को थोड़ा सा कठोर और लचीला बनाने में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो है स्ट्रक्चर में मेन है वो है प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर में जो है प्रोटीन होते हैं, तो एक तो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है अभी आपने देखा था वीडियो में कि एक तरह के जो चैनल बने होते हैं जिनसे कि कोई मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो अंदर जाते हैं, प्रोटीन के हैं या दूसरे कोई मॉलिक्यूल हैं, तो उन चैनल्स के माध्यम से जाते हैं। तो उन चैनल्स को बनाने में जो हेल्प करते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन जो है सतही तौर पर मौजूद होते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन क्या क्या काम करते हैं। तो ये प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट है, सिग्नलिंग है और एंजाइमेटिक गतिविधियों के कार्य करते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह से काम करते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि चैनल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन सतह से जुड़े हुए होते हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर लिपिड और प्रोटीन से जुड़े होते हैं। अगर लिपिड से जुड़ेंगे तो ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं, और प्रोटीन से जब जुड़ेंगे तो ग्लाइको प्रोटीन कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाएं किसी सेल की पहचान और उसके संचार में या कम्युनिकेशन में भूमिका निभाती है। तो सेल मेम्ब्रेन के जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं। सेल मेम्ब्रेन अनेक कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो पहला है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब इसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्यता, यानी किसी चीज को अंदर जाने देना और जो चीज जरूरी नहीं है उसको अंदर रोक के रखना। तो एक तरह से ये सिलेक्टिव काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन नियंत्रित करती है कि कोशिका में क्या प्रवेश करता है और क्या बाहर निकलता है। तो आवश्यक पोषक तत्वों को अंदर आने देना है, और जो खराब पदार्थ हैं, अवशिष्ट उत्पाद हैं, उनको बाहर हटाता है। तो यह चयनात्मक रूप से या सिलेक्टिव रूप से पारगम्य है, यानी कि आर पार कोई चीज जा सकती है, उसको बोलते हैं पारगम, जिसका अर्थ है कि केवल
कुछ मॉलिक्यूल ही स्वतंत्र रूप से पार कर सकते हैं, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एक तो ये हो गया सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये कंट्रोल देती है सेल मेम्ब्रेन कि जो जरूरी चीजें उनको अंदर आने देना, जो खराब चीजें उनको बाहर हटाना। दूसरा इसका मेन फंक्शन होता है वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ऊर्जा इनपुट के बिना, यानी कि बिना किसी खास ऊर्जा के वो झिल्ली के आर पार चले जाते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है इजीली आराम से बिना किसी ऊर्जा के, जैसे कोई बॉल जो है लुढ़क रही है, लुढ़कते लुढ़कते नीचे की, उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक, तो वो इजीली जो है पास आउट कर जाएगा, पारगम्य हो जाएगा, झिल्ली के इधर उधर दोनों तरफ जा सकता है बिना किसी एनर्जी के, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो ये तीन तरह से होता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल हैं उनको बाहर निकालने के लिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से बाहर निकालने के लिए, ये जो कंसंट्रेशन भाग है उसके लिए ताकत लगती है, ऊर्जा लगती है, तो वो ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। तो खासकर इसमें जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, जैसे सोडियम को अंदर लेना है, पोटेशियम को बाहर लेना, तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं इनको बाहर निकालने के लिए सेल मेम्ब्रेन को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो कि सेल में ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। तो अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक वीडियो देखेंगे, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। सॉरी। तो पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। In this video, we will be discussing passive transport. Passive transport is when particles move through the cell membrane from an area of higher concentration to lower concentration without the use of energy, also described as movement along the concentration gradient. What are the types of passive transport? They are diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. जो अभी हमने डिस्कस किया था, We'll describe diffusion first, using the solution in this container. A solution is a liquid with something dissolved in it. The aqua color represents the solvent, meaning the liquid part of the solution. The yellow particles represent the dissolved substance, called the solute. ये पहले The डिफ्यूजन structure in the middle of the container represents the semi-permeable cell membrane, a barrier through which only certain sized particles can pass freely. It's important to note that although diffusion often occurs across the cell membrane, diffusion can happen with or without a semi-permeable membrane. Right now, there is more solute on the left than there is on the right. Because solute particles are able to pass through this semi-permeable membrane, they are going to naturally move from an area of high concentration to an area of low concentration. तो इसे आप इस तरीके से समझे कि जैसे मान लीजिए ग्लास है, उस ग्लास में एक मेम्ब्रेन है, जैसे सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो एक तरफ जैसे मान लीजिए नमक का पानी है और एक तरफ नॉर्मल पानी है। तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा, गाढ़ापन होगा। तो नेचुरली जब डिफ्यूजन होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मॉलिक्यूल ट्रेवल करेंगे, और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, वो इजीली जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आराम से ट्रांसपोर्ट करेंगे।
तो ये फंक्शन, एक फंक्शन जो डिफ्यूजन का है, ये डिफ्यूजन बहुत सी जगह बॉडी में होता है जो हमने देखा है। कई जगह हमने सेल में भी पढ़ा है इसको, जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे तब भी ये चीज हमने पढ़ी थी। तो पहली प्रोसेस है इसमें डिफ्यूजन, उसके बाद हम ऑस्मोसिस और दूसरा भी हम देखेंगे। तो पहला था ये डिफ्यूजन, इसको थोड़ा सा आप देखें। They will continue to do this until both sides of the container have about equal numbers of solute particles. This is called achieving a state of equilibrium. तो ये डिफ्यूजन Let's कब review तक what we- होगा? जब तक कि दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाते हैं मॉलिक्यूल, तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा। we've covered so far. Diffusion is when particles move from an area of high concentration to low concentration. This just happens. It's a natural process that doesn't use any energy. Here's an example of diffusion happening without a semi-permeable membrane. If you spray air freshener in a room, people near you smell it right away. But after a short time, depending on the size of the room, people farther away will also begin to smell it. This is because the little scented molecules are trying to achieve equilibrium by spreading evenly throughout the room. तो डिफ्यूजन झिल्ली के साथ भी हो सकता है, मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकता है, और विदाउट मेम्ब्रेन के साथ हो सकता है। तो जो विदाउट मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल दिया कि कोई स्प्रे है, कोई आप डिओड्रेंट लगाते हैं, वो जैसे छिड़कते हैं तो वो जो है धीरे धीरे पार्टिकल एयर के साथ ट्रेवल करके पूरी जगह जितना भी रूम्स है वहां पर फैल जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन का एक तरीका है। Remember, diffusion is a natural process, like a ball rolling down a hill. The ball's movement is automatic and doesn't require any energy. Osmosis is diffusion that happens with water molecules. Let's look at another container in which the solvent is water, but the solute particles are larger. The membrane in this container has openings that are too small for the solute to move through, but water can pass through the membrane freely. This time, we'll focus on the concentration gradient of the water rather than the solute particles. Although the large solute particles can't pass through the membrane, the water molecules are small enough to pass through. The water moves freely from its area of high concentration to low concentration until equilibrium is reached. Equilibrium means that the proportion of water to तो ऑस्मोसिस में क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए ये बीकर में आप देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, इसके अपने साइज है, उसके जो पोर्स हैं, तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि वो पोर्स बहुत छोटे होते हैं। तो वाटर जो है, वाटर ट्रेवल कर सकता है, तो वाटर फिर जो है यहाँ से इस तरफ आ जाता है। जैसे आप किशमिश वगैरह रात को भिगा के रखते हैं तो कैसे किशमिश फूल जाती है ना। तो इस तरीके से ये उसका एक एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। solute particles is about the same on both sides of the membrane. In the cell, osmosis means diffusion of water through the cell membrane. Water can enter or leave the cell through the membrane until the cell achieves a state of equilibrium with its surroundings. So, like diffusion, osmosis is passive. No energy is required. It just happens automatically. अब ये तीसरा है Facilitated diffusion is a type of passive transport in which molecules diffuse through specialized protein channels in the cell membrane. The protein channels work like special ports or tunnels that allow these substances in or out of the cell. Facilitated diffusion is also when particles move from high concentration to low concentration. How do you know that? From the word diffusion. Facilitated diffusion works naturally, without added energy, just like the diffusion example we discussed earlier. But facilitated diffusion generally happens with particles a bit larger than those that can seep through the cell membrane's phospholipid layers.
So they move in or out of the cell along the concentration gradient in a specialized way, through protein channels. In summary, passive transport is a natural process that doesn't require the cell to expend any energy. The types of passive transport are diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. ठीक, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर जो है उसको मैं बाकी का एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे फिर। In this video, we'll discuss active transport. Active transport is when particles move from an area of low concentration to high concentration. This is also known as moving against the concentration gradient. The key thing to remember is that active transport requires energy. If passive transport is like a ball naturally rolling down a hill, active transport is the opposite. You can get the ball back up the hill, but you're going to have to expend some energy to do it. Cells require this type of substance movement in order to function properly. For example, heart muscle cells, responsible for making your heart beat, move molecules or ions against their concentration gradient. So, what are some of the main types of active transport? We have endocytosis, exocytosis, and protein pumps. Sometimes a cell uses active transport to pull in large particles using its cell membrane. This is called endocytosis. One type of endocytosis is called phagocytosis. This often happens when the cell takes in some type of nutrient. In another type of endocytosis, called pinocytosis, the cell takes in fluids by creating pockets in the cell membrane. The cell can ingest a large amount of fluid this way by pinching off these cell membrane pockets into the cytoplasm. The opposite of endocytosis is exocytosis. Exocytosis is when something needs to exit the cell. The cell can remove large molecules or wastes this way by fusing the membrane-bound vesicles containing them with the cell membrane, forcing them out of the cell. A good way to remember that exocytosis is a way for things to leave the cell is that it shares the first two letters with exit. You can also remember that endocytosis is a way for things to move into the cell because it shares the first two letters with enter. Sometimes the cell uses special protein pumps to move small molecules or ions against the concentration gradient into or out of the cell. An example of this is the sodium-potassium pump. In this process, the pump uses energy in the form of ATP molecules to move sodium ions out of the cell, and then move potassium ions into the cell. Protein pumps used in active transport require energy because the molecules or ions are moving from an area of low concentration to high concentration. In summary, active transport is when the cell uses energy to move substances in or out of the cell against the concentration gradient via endocytosis, exocytosis, or protein pump. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई मॉलिक्यूल्स को
आयंस को भेजना होता है तो वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसमें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और प्रोटीन पंप्स के बारे में बताया। एंडो यानी कि कोई चीज को अंदर लेना, एक्सो मतलब सेल के अंदर से बाहर की तरफ भेजना, और प्रोटीन पंप के माध्यम से जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर या बाहर करना। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं उसका यूज करना। सोडियम पोटेशियम जो चैनल होते हैं इनका यूज बाद में जब हम देखेंगे तो ये सिग्नलिंग में काम आते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह जनरेट होती है उसमें ये काम आते हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी, तो मैं अब जो भी आगे आपको बताऊंगा वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, जिससे जो है हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इसमें मॉलिक्यूल जो है एनर्जी इनपुट, बिना एनर्जी इनपुट के ये किसी भी मेम्ब्रेन के पार चला जाता है। तो इसमें हायर कंसंट्रेशन से जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं। ये तीन तरह से होता है: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं प्रसार, सुगम प्रसार और परासरण। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मॉलिक्यूल अणुओं को उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे आयन पंप इसमें शामिल होते हैं, और इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से अंदर या बाहर ले जाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन का अगला फंक्शन है सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन। कोशिका की सतह पर या सेल की जो मेम्ब्रेन है उस सतह पर रिसेप्टर प्रोटीन बाह्य कोशिकीय वातावरण से संकेतों को प्राप्त करते हैं और कोशिका के अंदरूनी हिस्सों में भेज देते हैं, जिससे कोशिकाएं जो है हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और अन्य संकेतों के आधार पर रिएक्शन या प्रतिक्रिया कर पाती हैं। फिर अगला है इसका फंक्शन सेल मेम्ब्रेन। ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या कार्य हैं, वो किस तरीके से सेल के अंदर फंक्शन करती, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगला है सेल रिकॉग्निशन एंड एडेशन, कोशिका की पहचान। तो जो सेल मेम्ब्रेन की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कोशिकाओं को एक दूसरे को पहचानने और टिश्यू और अंगों को बनाने के लिए चिपकने में सक्षम बनाते हैं। एक सेल दूसरी सेल से जुड़ेगी तो उसके ऊपर जो प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह जो है, तो उससे पता चलता है कि ये किस तरह की सेल है। तो उसको जो है सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से पहचाना जाता है। फिर अगला है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो सेल मेम्ब्रेन सेल के आकार को बनाए रखने में मदद करते हुए साइटोस्केलेटन के बारे में हमने देखा था। सेल के अंदर एक तरह के फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, जो अभी आपने सेल का जब वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। तो वो जो फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं, वो सेल को एक तरह का साइटोस्केलेटल यानी एक इस तरह का स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। फिर हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में देखा। तो एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन द्वारा 1972 में एक डेवलप्ड कोशिका या सेल मेम्ब्रेन की संरचना के लिए उन्होंने बताया कि एक उन्होंने मॉडल तैयार किया, वो मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, फ्लूइडिटी। तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन स्थिर नहीं होते, वे गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो जिससे क्या है, एक तरह का लचीलापन बनता है। दूसरा, मोजेक नेचर। सो प्रोटीन और लिपिड की रैंडम अरेंजमेंट होती है, ये कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। तो इसी व्यवस्था के कारण मेम्ब्रेन में मोजेक उपस्थिति होती है, जो जिसके कई प्रकार और कार्य अलग अलग भिन्न होते हैं। फिर कुछ कोशिकाओं में विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन सर्टेन सेल्स। तो जैसे कि माइक्रोबिलाई, सीलिया। तो सीलिया हमने अभी देखा था कि कहां पर पाए जाते हैं, किसको, किसी को मालूम है सीलिया कहां पर होते हैं, किस तरह की जो है सेल मेम्ब्रेन होती है जहां पर सीलिया आपको मिलते हैं। मैं यहाँ से आपका माइक्रोफोन ऑन करता हूं, जिसको भी मालूम है वो बताएं। हाँ जी, सीलिया कहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं? स्पर्म है, सही है, और लंग्स में भी ये पाए जाते हैं। तो जो कफ वगैरह ऊपर नीचे होता है या कफ निकलता है, तो वहां पर जो है उसके माध्यम से फ्लूइड को ऊपर नीचे आगे पीछे कहा जाता है। फिलोपियन ट्यूब में भी है। ठीक, वेरी गुड। फिर होते हैं माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई भी जो है कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन के ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये माइक्रोविलाई कहाँ पर पाए जाते हैं? किसी को जानकारी है माइक्रोविलाई या विलाई ये कहाँ पर होते हैं? आप चैट में भी लिख सकते हैं और बोलकर भी बता सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड। इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं विलाई, जिनसे क्या, जो कि कई, एक तो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वहां पर, दूसरा इंटेस्टाइन को गति देने में भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां भी जो है म्यूकस को जनरेट करना रहता है। ठीक है, सो हो गए माइक्रोबिलाई। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, उदाहरण के लिए आंतों की कोशिकाओं में। और सीलिया जो होते हैं मूवमेंट एंड सेंसरी कार्यों के लिए बाल जैसे ये उभार होते हैं। तीसरा है इसमें सेल जंक्शन। तो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम जैसी रचनाएं होती हैं जो कि सेल्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं, जिससे सेल में कम्युनिकेशन और मैकेनिकल स्टेबिलिटी मिलती है। अगला फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का कि इसमें प्रोटीन, कई तरह के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड देयर रोल्स। तो उनके कितने तरह के प्रोटीन और उनका क्या क्या रोल है। तो पहला है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के आर पार पदार्थों की आवाजाही को सुगम बनाते हैं। तो ये आवाजाही को सुगम बनाने के लिए क्या होते हैं, ये एक तरह के चैनल होते हैं, कैरियर होते हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा था कि जिन चैनल के माध्यम से सोडियम, पोटेशियम या बड़े मॉलिक्यूल अंदर बाहर होते हैं, तो इस तरह के जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाते हैं। दूसरे तरह के प्रोटीन है रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर प्रोटीन क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बांधना और सेलुलर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना। तो किसी तरह की चीजों को रिसीव करना, सिग्नल रिसीव करना इनका काम होता है, और उनको जो है आगे सेलुलर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने में हेल्प करते हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन, सो सेल मेम्ब्रेन की सतह पर विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कैटालाइज यानी उत्प्रेरित करना या एक्टिवेट करने में ये हेल्प करते हैं। फिर है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये एक तरह से सेल मेम्ब्रेन को स्थिरता और मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे कि इंटरनल साइटोस्केलेटन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इसको जोड़कर रखता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन
नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक तरह से ये स्थिरता या स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अब सेल मेम्ब्रेन से संबंधित जो रोग हैं, तो इंपॉर्टेंस इन हेल्थ एंड डिजीज वो क्या क्या हो सकती है। सो सेल मेम्ब्रेन की अखंडता और कार्य कोशिका के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी तरह का व्यवधान जो है बीमारी को पैदा करता है। तो पहली डिजीज जो है इसमें हो सकती है वो है कैंसर। सो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और सिग्नलिंग मार्गों में परिवर्तन से अनियंत्रित कोशिका वृद्धि हो सकती है। ठीक, तो अगर उसके प्रोटीन या फिर जो सिग्नल वाले रास्ते हैं उनमें किसी तरह की रुकावट आती है, तो जिससे सेल को पता ही नहीं चलेगा कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, तो वो अनियंत्रित तौर पे जो है सेल मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी, जो कि बाद में ट्यूमर का रूप धारण कर लेगी। फिर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक दोषपूर्ण क्लोराइड चैनल के कारण थिक म्यूकस बनता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। थोड़ी सी इसकी डिटेल में आपको बताता हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। ये एक तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर होती है और मोस्टली यह रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो एक जीन होता है CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये जीन में गड़बड़ी के कारण ये होता है, और इसके डिफेक्टिव होने से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस विच कैन कॉज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ है प्रॉब्लम, तो इस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है, क्रॉनिक कफ होगा, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन जैसे निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, साइनस इन्फेक्शन एंड नेजल पॉलिप्स। ठीक, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सिम्टम्स आएंगे इसके सिस्टिक फाइब्रोसिस के, सो डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग फूड ड्यू टू ब्लॉक्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, दूसरा है पुअर ग्रोथ एंड वेट गेन डिस्पाइट एडिक्वेट फूड इनटेक। फिर है फैटी या फाउल स्मेलिंग स्टूल्स में, और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड लीवर डिजीज। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसके सिम्टम्स हैं। फिर अदर सिम्टम्स भी हैं कि साल्टी टेस्टिंग स्किन। ठीक है, नमकीन जो स्किन रहेगी, और इसमें कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी भी देखी गई है मेल में, और ऑस्टियोपोरोसिस एंड जॉइंट पेन भी रहता है पूरे दिन। ये भी उसका एक सिम्टम्स है। अदर सिम्टम्स मेनली आपको जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस में कैसे होगा, तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है, बचपन में ही इसकी डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर स्वेट टेस्ट यानी जो पसीना है उसकी टेस्टिंग होगी। जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है CFTR जीन की। मेडिकेशन में इसमें अक्सर ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाता है। जैसे न्यूरोथेरेपी में ब्रोंकोडाइलेटर क्या है, किसको मालूम है, न्यूरोथेरेपी में ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में हम कौन से ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। जिसको भी पता है बताएं, ब्रोंकोडाइलेटर का यूज हम न्यूरोथेरेपी में कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। हाँ, ये जो है हम ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके मेडिकेशन में और क्या क्या है, तो इसमें जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और CFTR मॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं, और न्यूरोथेरेपी में हम जीन्स को सुधारने के लिए जो भी जीन्स के ट्रीटमेंट है वो हम इसमें देंगे।
तो कई बार सिर्फ हम क्या करते हैं कि लंग डिजीज में सिर्फ या तो अस्थमा देख लेते हैं या ब्रोंकाइटिस देख लेते हैं या एलर्जी देख लेते हैं, पर कुछ बीमारियां जेनेटिक भी हो सकती हैं। तो उनमें से एक बीमारी ये भी हो सकती है जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन चीजों को बहुत डीप और डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको जो है सारी चीजें पता तो चले। ये एक नई बीमारी आपको पता चल गई है ना, इसीलिए ये थोड़े से टॉपिक जो है टफ जरूर है बट इंटरेस्टिंग है। इनमें पढ़ने में थोड़ी बोरियत जरूर आती है, पर ये बहुत काम की चीजें हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पेशेंट देखते हैं जिसको कोई लंग डिजीज है या म्यूकस ज्यादा बन रहा है, तो आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि अगर ये अस्थमा के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है या दूसरे किसी ट्रीटमेंट, तो हो सकता है इसका जीन डिफेक्ट हो, तो वहां पर आप जीन्स के ट्रीटमेंट देकर भी उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या दिया जाता है, तो पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इसके सिम्टम्स हैं तो पेनक्रियाज के एंजाइम जो है उनको दिया जाता है। तो पेनक्रियाज के कौन से एंजाइम हैं जिनको डाइजेशन में किसी भी तरफ से हेल्प मिलती है? पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से हैं जिसको मालूम है आप लिखें, चैट में लिखें या बोल के भी बता सकते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम, तो वो हम ट्रीटमेंट में भी पेनक्रियाज के एंजाइम को उकसा सकते हैं। एमाइलेज, और कौन कौन से हैं? लाइपेज, नेक्स्ट ट्रिप्सिन, एक और बचा है। नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंजाइम नहीं है, ये एक तरह से एसिड को शांत करने का काम करता है ये। काइमोट्रिप्सिन, वेरी गुड। तो ये 4 तरह के एंजाइम है, कोई बात नहीं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी को आ रही है, प्रॉब्लम्स है, उसका म्यूकस ज्यादा बन रहा है, तो वहां पर ये भी ध्यान दिया जा सकता है कि हो सकता है उसका जेनेटिक प्रॉब्लम हो या CFTR जीन में गड़बड़ी हो। तो उस समय हमारे पास अभी क्या क्या आ गया, जीन्स के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर डाइजेशन के रिलेटेड सिम्टम्स है तो हम पेनक्रियाज को उकसा के उसके एंजाइम्स बना सकते हैं जिससे डाइजेशन इंप्रूव होगा। और क्या कर सकते हैं इसमें? हाई कैलोरी और हाई फैट डाइट। तो हाई कैलोरी डाइट आपको पता है, हाई फैट भी पता है। फिर विटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो खाने में आप डाइट बता सकते हैं कि कौन जो भी उनको विटामिन लेना है। तो मोस्टली ये जो है इस तरह के ट्रीटमेंट इसमें होते हैं। तो ये हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के बारे में एक ओवरव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? आप पूछिए मानवी जी। जी बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? माइक्रोफोन ऑन है ऑलरेडी। हेलो हाँ जी मैडम, बोलिए जी। सर, प्रणाम। प्रणाम जी। सर, अभी जो आपने चीज बताई ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट देने से अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है जी तो लाइक उसको जीन से रिलेटेड इश्यूज है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। सर, इसके रिगार्डिंग कोई टेस्ट होता है या हाँ ये खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज होगी? CFTR जीन्स का टेस्ट होगा इसमें। CF CFTR जीन्स। CFTR हाँ, CFTR फुल मैं फॉर्म सर? इसमें चैट में लिख देता हूँ तो आपको। अच्छा अच्छा, CFTR जीन टेस्ट है ना? हाँ, तो ये जेनेटिक टेस्टिंग होती है। ओके एक मिनट, डायग्नोसिस में मैं लिख देता हूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा। ओके ओके और ओके सर। और बचपन में ही न्यूबॉर्न स्कैनिंग भी होती है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है। तो ओके ये ओके। बच्चों में पता चलेगा इससे। नजर ये फर्स्ट टाइम ही सुना है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनना, क्योंकि है एक पेशेंट जिनको ना सर म्यूकस बहुत बन रहा है बट रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये तो
आप चेक कर लीजिए उनके विटामिन के पॉइंट में दर्द है कि नहीं, वो निकाल लीजिए, उससे हो हाँ जाएगा जी, बेटर। हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा सर, इनका कुछ नया इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इसमें न्यूज़ीन ट्रीटमेंट, जीन्स ट्रीटमेंट देंगे इसमें? हमारा एक ही सिस्टम है, डायग्नोस्टिक सिस्टम, वो है पेन पॉइंट। हम ओके, जब जीन्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे तो हम 4 पेन पॉइंट देखते हैं, फॉलिक ओके। एसिड, B12, नियासिन और हुँ, थायमिन। आपको ये, अब भले वो जीन टेस्टिंग कराएं ना कराएं वो उनका मैटर, लेकिन हुँ। हमें ये पहले देखने हैं। अगर इनमें दर्द है तो आप इनको निकाल दीजिए, उससे जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। ओके, ओके। पर ये वो जीन टेस्टिंग के टेस्ट तो बाद सर भी फर्स्ट। हम यही ट्रीटमेंट देने वाले हैं, हाँ जिम जी? के जो भी ट्रीटमेंट है। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसको पर सर WD में पेन है तो हम न्यू जीन्स दे सकते हैं, है ना? फिर बाकी के और भी ट्रीटमेंट, ब्लैक ट्रीटमेंट है या प्योर जीन्स के जो भी ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं। सर एक है ना, देखो पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना इज़ ठीक है कि भाई पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें म्यूकस में अगर आपको दूसरी चीज़ों से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और ये जीन से रिलेटेड हो सकता है, ये नई चीज़ है। हाँ, इसीलिए तो हम स्टडी कर रहे हैं डिटेल्स और यस डीप, सर। है ना? अच्छा बिल्कुल। लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, जी। चलिए हम सर थोड़ा-सा ये आगे बढ़ते हैं। तो एक सर डिज़ीज़ हमने, हाँ जी, बोलिए। सर इसमें स्टेम सेल का भी यूज कर सकते हैं क्या फॉर्मूला का? स्टेम सेल मेरे ख्याल से इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेम सेल तो जैसे मान लो ये ब्लड कैंसर वगैरह है या कोई बोन कैंसर से रिलेटेड है या जहाँ पर हमको कोई नया ऑर्गन बनाना है, तब हम उसका यूज़ करते हैं। ओके सर। तो अभी तक ट्राई नहीं किया, पर किया जा सकता है ट्राई। जी सर। पर मोस्टली वो फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि कोई दूसरी सेल को डेवलप करना है ना? तो नहीं नई वही सेल मैंने को बनाने के लिए हम स्टेम जीन्स के सेल का, साथ क्योंकि स्टेम सेल एक ऐसी जी सेल है जिसे ट्रोफोब्लास्ट भी बोला जाता है। जब ये बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय उस सेल को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, तो जो किसी भी दूसरी सेल को बनाने की क्षमता रखती है ना? तो उस समय अगर हमें लगता है कोई ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं है तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। MND वगैरह में भी इसको देते हैं। ठीक है, जी सर, धन्यवाद। ओके, चलिए। तो पहला हमने देखा कैंसर, दूसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिजीज में वो है वायरल संक्रमण। तो वायरस अक्सर कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए जो कोशिका की सतह है उस पर रिसेप्टर्स का उपयोग करते हैं। तो ये भी जो है वायरल संक्रमण में अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाती है सेल की, तो आराम से जो है इन्फेक्शन सेल के अंदर जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट जो है, ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में सेल मेम्ब्रेन कवर कर लिया था, उसके बाद इसका प्रॉपर ओवरव्यू के लिए हमने ये देखा। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक वो था हमारा, आज जो हमको पढ़ना था वो था साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो और उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे हम जो है करेंगे। तो सभी को सेल मेम्ब्रेन समझ में आई, उससे रिलेटेड आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे, समझने में आसानी हुई होगी कि क्या होती है, कैसा कंपोजिशन है उसका। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप फिर से इसको देख के समझ के आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल। तो साइटोप्लाज्म सूक्ष्म और बड़े दोनों प्रकार के बिखरे हुए कणों और अंगों से भरा होता है। अंग मतलब इसमें जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस, ये सेल के अंग हैं। ठीक, तो इसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स और ये कई तरह के अंगों से भरा होता है क्या, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का वह एक स्पष्ट तरल भाग जिसमें कि मॉलिक्यूल्स फैले होते हैं उसे साइटोसॉल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से घुले हुए प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज होते हैं। साइटोप्लाज्म में न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स,
राइबोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये 5 तरह के जो हैं ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या क्या है? न्यूट्रल फैट ग्लोब्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फिर राइबोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड पराक्सीसोम। तो इसमें मुख्य रूप से 5 जो हैं वो ये कहलाते हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड पराक्सीसोम। तो अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें इन 5 चीजों के बारे में हमको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। तो पहला जो इसमें आएगा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपके सामने पिक्चर में टॉपिक है। तो ये इस तरह से दिखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में ट्यूबुलर और फ्लैट वेसिकुलर संरचनाओं का एक नेटवर्क दिखाया गया है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसमें आपको देखिए 2 तरह की इसमें रचनाएं दिखेंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मैं कर्सर से आपको जो है, तो ये जो है ये फ्लैट रचना है, ठीक, और ये जो है ट्यूबुलर रचना है। तो ये दोनों से मिलकर ये बना होता है। ये ट्यूबुलर है, ये फ्लैट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स एक दूसरे से ये जुड़ी होती हैं। साथ ही इनकी दीवारें जो है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन क्या होती है? जिसमें 2 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें लिपिड होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे हर एक ऑर्गेनल जो है सेल के अंदर के अंग है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है, ठीक। तो इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन है। तो सेल के वो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस है तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन होगी। हर एक जगह जो है मेम्ब्रेन से हर एक ऑर्गेनल कवर्ड होता है। तो ये भी जो है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से बनी होती है। जिनमें सेल मेम्ब्रेन के समान बड़ी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो कुछ कोशिकाओं में इस संरचना का कुल सतही क्षेत्र जो है, उदाहरण के लिए लीवर की सेल लेते हैं, तो लीवर की सेल में सेल मेम्ब्रेन क्षेत्र से 30 से 40 गुना अधिक हो सकता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक छोटे हिस्से की रचना जो है यह आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के अंदर का स्थान एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स के अंदर का जो स्थान होता है उसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके अंदर का स्पेस आपको दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हैं। तो इनके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो कि कैसा रहता है? वाटरी मीडियम रहता है, एक तरह का पानी की तरह जली मीडियम होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर साइटोसॉल में मौजूद तरल पदार्थ से अलग होता है। जो साइटोसॉल है और जो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये दोनों अलग अलग होते हैं। साइटोसॉल अलग होता है और एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्थान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की 2 मेम्ब्रेन सरफेस
यानी दो झिल्ली सतहों के बीच के स्थान से ये जुड़ा होता है। कहाँ पर, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में। यहाँ पर देखिए, ये है, ये जहां मेरा कर्सर है, ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोला जाता है। तो उससे ये जुड़ा होता है। क्या जुड़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के कुछ हिस्सों में बनने वाले पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्थान में प्रवेश करते हैं और फिर कोशिका के अन्य भागों में चले जाते हैं। तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन बनेंगे वो इसके अंदर आएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह यहाँ बनेंगे, वो राइबोसोम यहाँ आएंगे, फिर वो इसके एक सरफेस से जुड़ जाएंगे। तो जिस सरफेस पे जुड़ेंगे उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, जहां पर ये नहीं होते हैं राइबोसोम जिस हिस्से में, उसको स्मूथ बोला जाता है। तो यहाँ से जो भी प्रोटीन इसके अंदर डेवलप होगा उसको जो है इसकी मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है, और सेल के जिन जिन ऑर्गेनल को उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां तक ये भेजेंगे। बाकी आगे की जो प्रोसेस है, प्रोटीन बनाना, फिर प्रोटीन वहां से निकल के गोल्गी एपरेटस में जाएगा। तो जो पैकेट के फॉर्म में बनाया जाता है, पैकेट के फॉर्म में वेसिकल्स उसको लेकर ट्रेवल करेगी, गोल्गी एपरेटस में जाएगा, वहां उसको प्रॉपर जो है एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा प्रोटीन को। तो जो सेल के जरूरी स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन है वो वहां पर स्टोर रहते हैं। तो इस तरह कोशिका के कुछ हिस्सों में बनने वाले पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्थान में प्रवेश करते हैं और फिर कोशिका के अन्य भागों में चले जाते हैं। साथ ही इस रेटिकुलम का जो सतह क्षेत्र है, इसकी झिल्लियों से जुड़ी कई एंजाइम प्रणालियां कोशिका के मेटाबॉलिज्म कार्यों के एक बड़े हिस्से के लिए मशीनरी प्रदान करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतनी डिटेल इसमें गाइडन में है। बाकी जो डिटेल्स है अभी इसमें है आगे, राइबोसोम एंड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा की जाएगी। बाकी का और जो डीप मटेरियल है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, सभी को आज की क्लास समझ में आई? कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। चीजें थोड़ी सी टफ जरूर हैं, पर समझेंगे तो आसान हो जाएंगी। सर टफ नहीं, लेंदी बहुत है। हाँ बिल्कुल। तो आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर